Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on the following three lines at 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. Please prefix 011 if you are calling us from outside Delhi. I am Ishan Mittal and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2371-7106, 2331-4444 और 2342-1050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके इस सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस के साथ ईशान मित्तल। India to take on issues of climate financing and funds for developing countries to achieve sustainable development goals at G20 meeting, says External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Foreign investors pump in over 6,000 crore rupees into Indian capital markets in the first fortnight of August, and global crude oil prices rise for 7th straight week. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में विकासशील देशों में जलवायु वित्त प्रबंध और धन की समस्याओं को G20 की बैठक में उठाएगा। विदेशी निवेशकों ने अगस्त के पहले पखवाड़े में भारतीय पूंजी बाजार में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया और विश्व बाजार में लगातार 7वें हफ्ते कच्चे तेल में तेजी जारी। And moving on to the first news item, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar exhorted to push for climate financing issue in the coming G20 meeting to iron out anomalies in which many developed countries failed to keep their pledge. The minister, besides climate financing, said many development countries failed to achieve sustainable development goals due to lack of funds. India will put forward these points in the coming G20 meeting, added Dr. Jaishankar. He asserted that India is working with the world with a more assertive and national interest-driven approach. The minister said the country's interests were often sacrificed because of some ideological reasons. He said it was an era where our capabilities were limited and also where we did not always put our national interest first. Sometimes we did not get the gains that we could have, he added, but that is in the past, the minister said. He emphasized that Narendra Modi government always works with world while putting the country's interest at its core. Dr. Jaishankar acknowledged the historical significance of non-alignment, describing it as a manifestation of India's assertion of independence during a time when its capabilities were limited. He underscored the shift from the non-alignment era to a more assertive and national interest-driven approach in the present globalized landscape. The minister also mentioned that delegitimizing terrorism is the central point of India's foreign policy now. The world is now seeing that India has zero tolerance for terrorism, added Jaishankar. And with that, we move on to our first caller, Sanjay from Mumbai. Sanjay, please ask your question. हेलो। Hi Sanjay ji, please ask your question. क्वेश्चन पूछे जी पूछिए। धीरेन्द्र कुमार सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, आपने म्यूचुअल फंड इनसाइड मैगजीन में एसआईपी रिटर्न का डाटा फिर से देना शुरू कर दिया है और मैं सर ये कहना चाहूंगा कि ये आपके मैगजीन की बहुत ही यूनिक चीज है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न का डाटा तो बहुत जगह मिल जाता है, लेकिन एसआईपी रिटर्न का डाटा और वो भी वन पेज में सारे इक्विटी और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का सिर्फ आपके मैगजीन में अवेलेबल है।
ये सर आपका यूनिक फीचर है, कृपया इसे बनाए रखिए और इसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। सर मेरा प्रश्न ये है, मैंने नैस्डैक 100 फंड में इन्वेस्ट किया है आपके रिकमेंडेशन पर ही, और मेरा इन्वेस्टमेंट है 1.7 CR। सो 31 मार्च 23 के पहले मैं उसमें एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग बिटवीन ए डेट फंड और नैस्डैक 100 में करता था। लेकिन अभी 31 मार्च के बाद से डेट फंड का टैक्सेशन चेंज होने से के बाद से मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ और इंटरनेशनल फंड और डेट फंड दोनों के लिए फिर एनी गेन पर मुझे 30% का टैक्स लगेगा। सो इसके लिए मैं एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ। सर मुझे क्या करना चाहिए? क्या जो मैंने नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट किया है सिर्फ ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रहने दे विदाउट एनी रीबैलेंसिंग, और फिर टैक्स को ध्यान में न रखते हुए चाहे कितना भी टैक्स लगे मैं रीबैलेंसिंग नैस्डैक 100 और डेट फंड में करता रहूं? सर धन्यवाद, मार्गदर्शन कीजिए। मुझे लगता है नैस्डैक 100 का जो पोटेंशियल है और ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इसका काफी ब्राइट है, लेकिन जो एसेट रीबैलेंसिंग हम करते हैं इसके पीछे नजरिया ये होना चाहिए कि आप कितना नुकसान आप विथस्टैंड कर पाते हैं। अगर इससे जिस तरह से पिछले साल हुआ था, जिस तरह से 2022 में नैस्डैक 100 में गिरावट देखी थी, और अब वो भारी गिरावट करीब 35-40% की गिरावट थी, और वो पूरी गिरावट जो गिरा था वो पूरी तरह रिकवर हो गया है। और नैस्डैक 100 के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें कि नैस्डैक 100 में भी बहुत सारा रिकन्फिगरेशन हुआ है, तो मुझे लगता है कि नैस्डैक 100 एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, हाई ग्रोथ व्हीकल है, और क्योंकि इसमें इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एक एडेड डायमेंशन करेंसी का हो जाता है, जिस वजह से ये जगह ज्यादा ही वॉलेटाइल दिखता है, लेकिन ये है भी वॉलेटाइल और ये टेक्नोलॉजी हेवी है। तो आप इसको देखिए कि कितनी यहाँ पे बढ़त होगी, जिसके बाद आपको थोड़ा रीबैलेंसिंग करना चाहिए। तो इसको दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। एक तो कि आप इसको लंबे समय तक स्टेडी ग्रोथ, अगर 15-20% का सालाना वृद्धि होता है तो आप रीबैलेंस मत कीजिए। अगर उससे अचानक कभी ऐसा होता है कि एक साल में दुगना हो जाता है तो जरूर कुछ पैसा निकाल दीजिए। जी, अगले कॉलर हैं कोलकाता से अनिमेश। अनिमेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई हैव 2 क्वेश्चंस सर। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन कोऑपरेटिव फंड एंड a म्यूचुअल फंड, and where one should invest money? Would it be safe if we invest in cooperative fund or mutual fund? Thank you, sir. I really don't know about cooperative fund, but I understand, mutual fund, that the mutual fund is a vehicle through which you can invest in many asset classes and get instant diversification and convenience. And I really don't know about cooperative fund. Basically, the mutual fund is a vehicle which helps you channelize in assets which otherwise might not be very easy to access. You can invest in equity, you can invest in debt, you can invest in combination of these two, you can invest in international equity, and it makes it convenient for you to do it with your 500 rupee investment. As I'm not aware of what you are referring to as cooperative fund, I'm unable to really make a true comparison. And we have our next caller, SPS Jain from Noida. Mr. Jain, please ask your question. हेलो जी जैन साहब, अपना सवाल पूछें। नमस्कार जी, धीरेन्द्र जी को भी नमस्कार। बहुत एकदम जल्दी आ गया मेरा, अभी तो कनेक्शन लगा था। धीरेन्द्र जी, मार्केट में ये इक्विटी बेस्ड 3 तरह के फंड दिख रहे हैं। एक तो फ्लेक्सी कैप है जो पहले मल्टी कैप कहलाता था, और कुछ के अभी मल्टी कैप भी हैं, जैसे एसबीआई ने भी एक मल्टी कैप अलोंग विद फ्लेक्सी कैप शुरू किया, और एक और मुझे दिखाई दिया है एसबीआई का ही, लार्ज एंड मिड कैप। तो इन तीनों में इनके रिटर्न भी मैंने देखे अलग अलग आ रहे हैं, तो आपका इसमें क्या विचार है? ये सेबी का क्लासिफिकेशन सिस्टम आया है तब से म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए सिमिलर तरीके के फंड को डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन ये कुछ मिलते जुलते फंड है। अगर फ्लेक्सी कैप फंड को देखें, जहां इनके ऑब्जेक्टिव में अंतर है,
लेकिन काफी हद तक अपनी लाचारी की वजह से, अपने कंपल्शन की वजह से, अपने स्केल की वजह से ये एक जैसे देखते हैं। जैसे फ्लेक्सी कैप फंड जो पुराने हैं और पहले ये मल्टी कैप होते थे, और जब ये बहुत जो बड़े फंड थे उन्होंने अपना कैटेगरी बदल करके उसको फ्लेक्सी कैप कर लिया ताकि वो अपना फ्लेक्सिबिलिटी रिटेन करना चाहते थे, और ये सारे फंड बड़े हो गए। बड़े होने की वजह से अधिकतर फंड डोमिनेंटली लार्ज कैप हो गए। अगर आज आप देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड का 70-80% पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है। मल्टी कैप का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि कम से कम 25% लार्ज, 25% मिड और 25% स्मॉल कैप में लगाना अनिवार्य है, जिस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा प्रदर्शन अच्छा दिखेगा, क्योंकि स्मॉल कैप का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा है। और अगर किसी भी फंड में अनिवार्य हो 25% वहां लगाना मिड कैप में और स्मॉल कैप में, तो वहां पे हमें अच्छा रिटर्न दिख रहा है। लार्ज और मिड कैप का जो डेफिनेशन है, यहाँ पे सब्सटैंशियली लार्ज कैप और मिड कैप में होगा, तो ये तीनों तरीके के फंड आपके डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग समय पे अलग अलग देखेगा, और मेरी सलाह होगी कि जिस तरह की लाचारी लार्ज और मिड कैप में और मल्टी कैप में दिख रही, फ्लेक्सी कैप में दिख रही है, आज के दिन अगर आपको एक डाइवर्सिफाइड फंड का चुनाव करना हो तो सबसे प्रॉमिसिंग ये मल्टी कैप फंड दिख रहे हैं। जी, अगले कॉलर हैं कोलकाता से विकास। विकास, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी सर, नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम को सभी का नमस्कार। जी नमस्कार। एसबीआई लॉन्ग टाइम इक्विटी फंड रेगुलर प्लेन ग्रोथ 4 साल हो गया, 108 3 डिजिट रिटर्न दे रहा है, अभी क्या करना है? और एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड 13% रिटर्न दे रहा है, मेरा 5 साल का नजरिया है, अभी 3 महीना 4 महीना हुआ। और एसबीआई मल्टी कैप फंड अभी 17% रिटर्न दे रहा है, ये 5 साल का नजरिया है, ये तीनों फंड कैसा रहेगा? एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड काफी जबरदस्त इसका प्रदर्शन है, होल्ड कीजिए अगर पैसे की जरूरत नहीं हो। और अधिकतर फंड में आपका नजरिया यही होना चाहिए कि इक्विटी में लगा हुआ पैसा जो है उसको केवल इसलिए निकाले क्योंकि बढ़ गया है, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि आपके निकालने के बाद भी बाजार बढ़ता रह सकता है। अगर आपकी जरूरत है तो जरूर पैसा निकालिए। अगर इस पैसे की जरूरत अगर आपको 1-1.5 साल के बाद भी पड़ने वाली है और आज ये पैसा आपको लगता है कि काफी बढ़िया बढ़ चुका है, आपकी जरूरत वो पूरी हो जाएगी, तब भी निकाल लीजिए थोड़ा सा। लेकिन दूसरा जो नियम आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए कि क्या आपके पास कोई एसेट एलोकेशन प्लान है, क्या आप कोई प्लान फॉलो करते हैं कि इतना बढ़ गया है जिस वजह से आप कोई एक भाग, अगर आपका पूरा पैसा 75% पैसा इक्विटी में लगा हो, 25% डेट में लगा हो, अगर ये कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, लगता है निकालिए, एसेट एलोकेशन प्लान बनाइए और उसके तहत जरूर निकालिए। जी, अब अगली खबर पे नजर डालते हैं हम। अगस्त के पहले पखवाड़े में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों में 3,272 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 2,860 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह अगस्त में अब तक कुल निवेश भारतीय पूंजी बाजार में 6,132 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारतीय शेयर बाजार में लगातार 5वें महीने लिवाली का रुख कायम है। इससे पहले विदेशी निवेशकों ने जुलाई में लगभग 46,618 करोड़ रुपए और जून में 47,148 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जो अगस्त 2022 से अब तक विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में एक महीने में निवेश की गई सबसे बड़ी रकम थी। और अगले कॉलर हैं हमारे दिल्ली से वरुण शर्मा। वरुण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। देवेंद्र जी नमस्कार, मार्केट मंत्रा का पूरा टीम को मेरा नमस्कार जी। सवाल पूछें जी। प्रश्न ये है, जो अगर कोई फंड, जैसा कई बार क्या होता है हम कंटिन्यू इन्वेस्ट करते आ रहे हैं कई साल से, और कुछ एक फंड जैसा साइकिल आता है तो फंड काम नहीं करता है, अच्छा नहीं करता है, मगर सर जो कैपिटल गेन इतना ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा कोई अगर चेंज करना चाहे उस फंड को, तो क्या इस टैक्स बचाने का कोई रास्ता है? ना 1 लाख का
नहीं, टैक्स बचाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, लेकिन जो टैक्स के नियम है, अगर ये फंड आपका बहुत पुराना है, अगर आपने 10-15 साल पहले लगाया था, तो 2018 तक जितना कुछ भी गेन हुआ था, उस गेन पे आपको टैक्स नहीं देना है। उस समय तक जो आपका कैपिटल गेन था, उसके बाद होने वाले गेन पे आपको कैपिटल गेन देना होगा, और वो 10% होगा। तो कैपिटल गेन अगर आपके पास इक्विटी में हुआ है, तो इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। धीरेन्द्र, कुछ और आम सवाल होते हैं श्रोताओं के, जैसे सबसे अच्छा असेट एलोकेशन प्लान क्या हो सकता है, क्या टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं? नहीं, एक चीज जो कि ये टैक्स हमारे सोच का काफी इम्पोर्टेंट हमारे फ्रेमवर्क में होता है कि टैक्स कैसे बचाया जाए। एक चीज जिसको बारीकी से सोचना चाहिए कि जब तक आप अपना पैसा नहीं निकालेंगे, तब तक आपको टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपका पैसा बढ़ता रहता है और आप उसको नहीं निकालते हैं, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स आपको तभी देना होता है जब आप कैपिटल गेन्स टैक्स रियलाइज करते हैं। और दूसरा चीज कि अगर आप कोई एसेट एलोकेशन के तहत अगर अपना पैसा इक्विटी से डेट में करते हैं या डेट से इक्विटी में करते हैं, तो उससे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा। उससे बचने का एक आपके पास तरीका है कि अगर आप किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाते हैं, वहां पे, और किसी भी आम निवेशक के लिए, शुरुआती निवेशक के लिए एक अच्छा व्हीकल है, क्योंकि यहाँ पे जब बाजार गिरता है तो ये फंड बहुत रफ्तार से नहीं गिरता है, और शुरुआती निवेशक के लिए बहुत जरूरी है कि इक्विटी में उसको कोई ऐसा शॉक नहीं मिले जिस वजह से वो डर के हमेशा के लिए बाजार से निकल जाए। तो ये फंड जिसमें 75% इक्विटी होता है, 25% डेट होता है, और फंड मैनेजर खुद ही बैलेंस करता रहता है, यहाँ पे जब फंड के स्तर पे वो होता है तो आपको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना होता है। तो आपको प्रिंसिपली आपकी ये सोच होनी चाहिए कि आपका कोई भी निवेश लंबे समय के लिए हो, ताकि जब तक ताकि आप रियलाइज नहीं करें, और रियलाइज नहीं करेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और पूरा पैसा आपका रफ्तार से बढ़ता रहेगा। अगर आपको कोई एसेट एलोकेशन फॉलो करना है तो कोशिश कीजिए कि एक ऐसे फंड का चुनाव करें जहां पे वो एम्बेडेड एसेट एलोकेशन हो, ताकि आप अगर अपने स्तर पे अगर खरीद बेच करेंगे इक्विटी या डेट, तो आपको टैक्स लगेगा। लेकिन अगर वो फंड के अंदर ही होता रहता है तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे भी नियम वही है कि जब तक आप उसको रियलाइज नहीं करते हैं, तब तक आपका सारा गेन्स टैक्स एग्जेम्प्ट है, या टैक्सेबल नहीं है। ये सिर्फ टैक्स डेफर्ड है, टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्स डेफर्ड है। Thank you, Dhiren ji. We have our next caller, Ashish from Mumbai. Ashish ji, please ask your question. Yeah. Hello to everyone. Hi. I have two questions. First is regarding Mirai Asset. Mirai is a group. They have one scheme called you can take a loan with respect to the amount which is invested in their fund. So I was just wanted to ask seriously what is they are charging around 9% rate of interest loan. Mm-hmm. And second part of my question is that you just said now your multi-cap fund. So I have one query. If I wanted to invest for a long term, so should I give it for a small cap or multi-cap? Because the difference between the rate of interest from 3 years to 5 years I am saying is very less. Mm-hmm. So I want your views on that. Thank you. Mirai Asset, your first question that, you can borrow money against your investment in mutual funds. Many banks, many financial services companies, and many fintechs also offer this. Mirai Asset also has a financial services company, NBFC, which is in the lending business, and it lends you money, and it does not lend only against Mirai Assets. It also it is a lender against any mutual fund that you may have, and it can be done digitally. If you have a mutual fund, assuming, I'm just giving you for sake of illustration, for sake of simplicity, if you have 1 crore rupee investment in an equity fund, and for some reason you urgently need some money, you urgently need some 20 lakh rupees, and you need it for the short term. It's that you need it for a couple of months, and you don't want to disturb your investment simply because it will translate into a lot of capital gains or capital losses and accounting and all those things. What you can do is you can, in about 15-20 minutes, through a digital app, you can
borrow against the mutual fund that you have invested. They will give you a credit line worth 45%. That is the margin requirement, 45% of your investment value, and you can easily borrow 20 lakh rupees for the investment that you the day you and they will put a lien on your investment, and it is not only on Mirai assets, it is on any mutual fund that you have invested against which you can borrow, and it's a very cleanly executed program whereby they charge the interest every month. And the day you are able to pay off your loan, they take the lien off your investments and your investments become free to sell anytime you want to. I would like to urge anyone that this should be looked upon as my general principle, my general advice is that one should not be doing any long-term borrowing against equity. It can only be a short-term borrowing for if there's an emergency or a short-term requirement and you don't want to disturb your long-term investment plan or investment portfolio. Second, don't make it a habit. And that's it. If you are disciplined about this, because the general principle is that never borrow money to invest, which actually, if it becomes a long-term habit, then it will amount to borrowing money to invest in equity, which can put you in trouble sometimes. जी, अगले कॉलर हैं महाराष्ट्र से अमर रेड्डी. अमर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें. नमस्कार जी, गुड इवनिंग टू द एंटायर टीम. आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द एक्सपर्ट्स discussion about the long-term capital gain and the short-term capital gains on the mutual funds. I have a question. Assuming an investor invests, say, an XYZ amount, and that XYZ amount has increased into an XYZ plus. So if he withdraws only that much amount what he has invested, will he still be liable to pay any gains because the additional gains are still parked in the mutual funds? So just wanted a clarification on that. Yes, you are not liable to pay taxes because you will be the general principle that is being followed in accounting terms is first in, first out. First, you will be taking the money out, and if you just assuming that you invest, I'm just taking an example for sake of illustration to explain it, which is if you invest 1 lakh of rupees in a fund and the value of that becomes 1,50,000 rupees. If you take only 1 lakh rupees, you will still be liable for taxes because your all those units which aggregate up to 1 lakh rupees will be sold. And those units prices would have become 1.5 times. So the gain component of those units, you will be able to retain. So the tax payable on that component will be you'll be liable to pay taxes on the units which you will redeem the gain component of that, the capital gains from those units. And we have our next caller, Santosh from Uttar Pradesh. Santosh ji, please ask your question. हाँ जी, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर मेरा 2 सवाल है जी. एक तो ये कि जो अभी सेबी का नया रूल आया है कि नॉमिनेशन जो है म्यूचुअल फंड और डीमैट सब में अनिवार्य है, 30 सितंबर तक का लास्ट डेट है. मान लीजिए उसके बाद भी कोई रह जाता है नॉमिनेशन करने के लिए, तो उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? मतलब वो सेल या बाय नहीं कर सकता है या फिर वो स्टॉक ये हो जाएगा, मतलब नील हो जाएगा? और दूसरा एक सवाल, मान लीजिए किसी का इनकम ऐसा है कि जो टैक्स स्लैब में नहीं आता है, लेकिन स्टॉक मार्केट से अगर कुछ इनकम हो जाता है उसको शेयर से, तो क्या उसको टैक्स भरना ही होगा क्योंकि वो टैक्स स्लैब में है नहीं आता है, मान लीजिए? जी. पहला वाला सवाल कि आपका पैसा कभी कोई जब्त नहीं कर सकता है. आपके ट्रांजैक्शन पे पाबंदी लग जाएगी, बल्कि आप पैसा अपना रिडीम नहीं कर पाइएगा. और ये जो नॉमिनेशन जो अनिवार्य किया गया है, उसमें एक ये भी प्रावधान है कि अगर आप अपने निवेश के लिए अगर आप कोई नॉमिनी नहीं रखना चाहते, तो अभी कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है. लेकिन नए प्रावधान ये भी है कि आप अपने निवेश में ये चुन पाते हैं कि आपके निवेश में कोई नॉमिनी नहीं है. तो एक तो ये संभव है, और दूसरा आपका पैसा कभी डूबता नहीं है, आपका पैसा कोई कॉन्फिस्केट नहीं कर सकता है. केवल आप अपना पैसा जब निकालने जाएंगे तब हो सकता है कोई समस्या हो. और
मुझे लगता है कि आपके ऑनगोइंग निवेश में भी किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। जी, अगले कॉलर हैं अमृतसर से मनोहर शास्त्री। मनोहर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार मार्केट मंत्र टीम और धीरेन्द्र जी को नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि यदि वन टाइम फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो प्रेजेंट सिनेरियो में म्यूचुअल फंड में जो एस्टेब्लिश्ड स्टॉक्स हैं, एस्टेब्लिश्ड जो हैं फंड्स, उसमें करना चाहिए या एनएफओ को करना चाहिए, प्लीज बताइए। मेरी 2 सलाह है आपके लिए। अगर किसी म्यूचुअल फंड का आप चुनाव करते हैं तो नए फंड में आपके लिए चुनाव करने के लिए कोई आधार ही नहीं होता है। आप किस चीज के आधार पे आप चुनाव करेंगे कि इस फंड में निवेश करना चाहिए। और दूसरा, अगर आपको एक साथ पैसा लगाना है, नया पैसा लगाना है और शायद ज्यादा रकम भी हो, तब भी मेरी सलाह होगी कि हर बाजार में किसी भी नए निवेशक को एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया लगाने के लिए तो उसको भी अभी निर्भर करता है कि आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल, कितना इम्पोर्टेंट वो पैसा है आपके कॉन्टेक्स्ट में। इसके आधार पे उसको स्प्रेड करके लगाइए, एक साथ न लगाइए, क्योंकि इस तरह के बाजार में बहुत डर होता है कि आप बड़ा सा पैसा या आपकी बड़ी रकम एक ऐसे लेवल पे लग गई जिसके बाद आपको बड़े बड़े दिनों तक निराशा हो। And we have our next caller, Prem from Gurugram. Prem, please ask your question. हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे एक्सपर्ट से कि जो नए म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं तो उनको कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, ब्रांच में बातचीत हुई थी तो वहाँ मैनेजर बोलते हैं कि आप यहाँ पैसा लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। जिसको जानकारी नहीं है तो वो कैसे इस चीज में जाएगा, कैसे समझ पाएगा कि हमारा पैसा ठीक जगह लग रहा है या नहीं लग रहा। अच्छा, and we got disconnected. We have our next story here. Global crude oil prices rose for the 7th straight week, the longest such streak since 2022. The last time that Brent rose for 7 straight weeks was in Jan-Feb 2022, prior to Russia's invasion of Ukraine. Brent crude oil's futures gained 0.5% to the end of week at $86.81 per barrel, while US crude also gained 0.5% to close the week at $83.19 per barrel. Oil prices are rising higher after the IEA forecasted record global demand and tightening supplies. IEA estimate that global oil demand hit a record 103 million barrels per day in June and could scale back another peak this month. Meanwhile, output cuts from Saudi Arabia and Russia set the stage for a sharp decline in inventories over the rest of 2023, while IEA said drive oil prices even higher. The OPEC has said it expects global oil demand to rise by 2.4 million barrels per day this year, unchanged from its previous forecast. जी, आज सवालों का सिलसिला यही खत्म होता है। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और सुर्खियों पर नजर डालते हैं, पहले ईशान से। Before we close, a reminder of the headlines. India to take on issues of climate financing and funds for developing countries to achieve sustainable development goal at G20 meeting, says External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Foreign investors pump in over 6,000 crore rupees into the Indian capital markets in the first fortnight of August. And global crude oil prices rise for 7th straight week. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में विकासशील देशों में जलवायु वित्त प्रबंध और धन की समस्याओं को G20 की बैठक में उठाएगा। विदेशी निवेशकों ने अगस्त के पहले पखवाड़े में भारतीय पूंजी बाजार में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया और विश्व बाजार में लगातार 7वें हफ्ते कच्चे तेल में तेजी जारी। That's it in this edition of Market Mantra. Market Mantra.